یونیکیڈمی میں آج کی ہماری دوا ہے خاکسی۔ یہ بخار کو کم کرنے کے لیے بہت مشہور ہے۔ آئیے اس کا مختصر تعارف جانتے ہیں۔ اسے انگریزی میں ہیج مسٹارڈ کہتے ہیں۔ مسٹارڈ رائی کو کہتے ہیں، اس کی پھلیاں رائی کی طرح ہوتی ہیں۔ لندن راکٹ بھی کہا جاتا ہے اسے۔ اس کا لاطینی نام سسمبریم ایریو ہے۔ اس کا مزاج گرم تر درجہ دوم ہے۔ خاکسی کے افعال و خواص جانتے ہیں۔ سب سے پہلے نفع خاص، یہ دافع حمہ ہے، یعنی بخار کو کم کرتا ہے۔ منفس بلغم ہے، بلغم کا اخراج کرتا ہے، ملطف بھی ہے۔ اس کے مشہور افعال جانتے ہیں۔ یہ دافع حمہ ہے، مشکل الفاظ آپ کو سامنے دے دیے گئے ہیں۔ یہ ملطف ہے، ڈیملسنٹ ہے، لطافت پیدا کرتا ہے، حلق اور غشائے مخاطب میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ منفس بلغم ہے، بلغم کو کھانسی کے ذریعے خارج کرتا ہے۔ نافع ہیضہ ہے، ہیضہ کے لیے خاکسی بڑا مشہور تھا، اب ہیضہ کا مرض ہی کم ہوتا ہے۔ یہ مسمن بدن بھی ہے، جسم کی قوت کو بحال کرتا ہے، موٹاپن لاتا ہے۔ یہ کچھ بنیادی ماخذ ہیں جن کی مدد سے میں لیکچر تیار کرتا ہوں۔ اب اس کے مواقع اور ترکیب استعمال۔ یہ دافع حمہ ہے، بخار کے لیے استعمال اس کا بہت مشہور ہے، خاص طور سے چیچک، خسرہ اور ٹائفائڈ کے بخار کے لیے مشہور ہے، جس میں جسم پر کچھ دانے آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ دانے بڑی آسانی سے نکلتے بھی ہیں۔ حالانکہ خاکسی براہ راست جسمانی حرارت کو کنٹرول کرنے والے دماغی مراکز پر اثر نہیں کرتی، بلکہ اپنی محرک یعنی پسینہ لانے کی خاصیت اور محلل آرام فعل کی وجہ سے بخار کو کم کرتی ہے۔ بخار کو کم کرنے کے لیے جو فائٹو کیمیکلز ہیں اس کے گلوکوسینولیٹ، کوئرسیٹین اینڈ کیمفیرول، اور جس کی وجہ سے بخار کم ہوتا ہے۔ یہ آرٹیکل بخار کم کرنے پر ہی بخار اور گرمی کے لیے بہت مجرب نسخہ آپ کے سامنے ہے۔ خاکسی 20 گرام، تباشیر 10 گرام، سندل سفید 10 گرام، کتیرا 5 گرام اور شکر 50 گرام۔ تمام اجزاء کو خشک کر کے باریک صفوف بنا کر ملا لیں۔ 3 تب 5 گرام عرق بید مشک کے ساتھ استعمال کریں۔ خاکسی کا یہ جو نسخہ ہے تپ محرکہ یعنی ٹائفائڈ کے بخار کے لیے خاص طور سے ہے۔ خوب کلا یعنی خاکسی 5 گرام، منقع 5 عدد، انجیر 2 عدد، عناب دانے نکال کر 7 دانے، پرسیوشا 3 گرام، گاؤ زباں 4 گرام اور پانی 1 لیٹر لیں۔ تمام چیزوں کو پانی میں جوش دیں، آدھا رہنے پر اتار لیں، چھان کر صاف کر کے مصری ملا کر پلائیں۔ طریقہ استعمال، پورے جوشاندے کو 3 حصہ کر کے دن میں 3 بار پلائیں۔ یہ منفس بلغم ہے، بلغم کا اخراج کرتی ہے۔ خاکسی اپنے ملطف اور منفس بلغم فعل کے لیے بھی مشہور ہے، اپنی لعابی خاصیت کی وجہ سے، کیونکہ اس سے پانی میں جب بھی بھگویا جاتا ہے تو اس میں لعاب نکلتا ہے، اور اسی خاصیت کی وجہ سے یہ حلق میں تنفسی راستے پر چکنی تہ چڑھا دیتی ہے، جس کی وجہ سے خراش کم ہو جاتی ہے اور کھانسی کی شکایت بھی کم ہو جاتی ہے۔ ساتھ میں یہ بلغم کو نضج دیتی ہے اور پتلا کرتی ہے، میکولائٹک ایفیکٹ ہے اس کا، اور جس کی وجہ سے بلغم کا اخراج بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ یہ اینٹی ٹشو اور ایکسپیکٹورنٹ ایفیکٹ کے لیے ریسرچ آرٹیکل تھا۔ جو فائٹو کیمیکلز اس کے کام آتے ہیں، میوسیلیج اور سیپوننس، ان کی وجہ سے اینٹی ٹشو اور ایکسپیکٹورنٹ اثر آتا ہے۔ یہ آسان نسخے آپ کے سامنے ہیں جن میں خاکسی کا استعمال ہے۔ ایک جوشاندے کا نسخہ ہے، ایک شربت اور ایک لوگ کا۔ نزلے کے لیے اور بخار کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سینے کی خشونت اور خراش کے لیے اور بلغمی کھانسی کے لیے شربت بناتے ہیں، اور اسی طرح کھانسی اور سینے کی جلن کے لیے لوگ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نافع ہیضہ ہے، کالرا میں پیاس اور قے کو تسکین دینے کے لیے گلاب میں جوش دے کر پلاتے ہیں، ساتھ میں آب کاسنی سبز مروق بھی دیا جاتا ہے۔ اس کی جراثیم کش تاثیر کی وجہ سے یہ نہ صرف ہیضہ بلکہ آنتوں کے دیگر تاجیہ کے امراض مثلا زہیر و اسہال میں بھی خاکسی کافی مؤثر پائی گئی ہے۔ یہ اس کی اینٹی بیکٹیریل ایکٹیویٹی کے لیے ریسرچ پیپر آئسوتھائیوسائنیٹس اور میوسیلیج، یہ فائٹو کیمیکلز اس کے اینٹی بیکٹیریل ایکٹیویٹی کو انجام دیتے ہیں۔ یہ مسمن بدن بھی پایا گیا، دودھ کے ہمراہ مسمن بدن واقع ہوا ہے۔ دق الاطفال، جو بچوں کی ٹی بی ہو جاتی ہے اور دبلا پن ہو جاتا ہے، اس میں یہ بہت مفید پایا گیا، ایسا مخزون الادویہ میں حکیم کبیر الدین صاحب نے بتایا ہے۔ دیگر مواقع اور ترکیب استعمال جانتے ہیں۔ معدے کے لیے یہ مقوی ہے، معدہ ہاضم ہے، بھوک بڑھاتا ہے۔ خاکسی دانہ غلبہ صفرا اور پیاس اور صفرا کے دیگر عوارضات میں مفید ہے۔ یہ جعلی اثر ہے، چہرے و رخسار کے رنگ کو صاف کرتا ہے، صفوف بنا کر چہرے پر ملا جاتا ہے۔ یہ مفتح سدد ہے، سدوں کو اور مسامات کو کھولتا ہے۔ نافع ورم ہے، ورم پستان، ورم خصیہ، نقرس، آنکھ اور کان کی لو کے زخم میں بھی خاکسی فائدہ کرتی ہے۔ یہ معین حمل ہے، اس کا فرزجہ بنایا جاتا ہے اور اندام نہانی میں رکھا جاتا ہے، حمل میں معاونت کرتا ہے اور رحم کے پھوڑے پھنسیوں کو بھی نافع ہے۔ کچھ نسخے آسان سے خاکسی کے بڑے مشہور ہیں، جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ اسے نوٹ کر سکتے ہیں۔ خاکسی 6 گرام، منقع دانہ نکال کر 8 دانے، تھوڑی چینی کے ساتھ جوش دے کر پلائیں۔ موتی جھرا، میزلس وغیرہ کے بخار کو کم کرتا ہے اور دانے جلد نکل آتے۔ وبائی بخار میں 60 گرام خاکسی کو 6 کلو پانی میں جوش دیں اور مریض کے پلنگ کے نیچے رکھ کر بھاپ بدن پر لگنے دیں۔ وبائی بخار کسی بھی قسم کا ہو کم ہو جاتا ہے، خسرہ وغیرہ کے دانے بھی جلد نکل آتے۔ تیسری ترکیب جوشاندہ خسرہ ہے، خاکسی 3 گرام، انجیر 3 دانے، منقع دانے نکال کر 4 دانہ، عناب 3 دانہ، سب کو 6 گھنٹے 250
50 मिली लीटर पानी में भिगो दें, फिर जोश देकर जब आधा रह जाए जरूरत हो तो चीनी मिलाकर छान कर पिलाएं। हैजा में प्यास और कै को तस्कीन देने के लिए गुलाब के अर्क में जोश देकर खांसी को पिलाते हैं। आब कासनी मुरवक के हमरा खिलाते हैं। खून की उफूनत की वजह से अगर बुखार हो, नुस्खा बुखार दमवी देना चाहिए। 7 दाना और नाब 2 तोला इमली गूदे के पानी में भिगोकर छान लें और 20 ग्राम चीनी मिलाकर इस्तेमाल से पहले 7 माशा खांसी का भी इजाफा कर लें। हाथ पांव की जलन के लिए और सोजिश के लिए नाब 5 दाना, शाहतरा 6 माशा, इसको अर्क शाहतरा में भिगा दें। शीरे तुख्म खयारैन 7 माशा लें। शरबत नीलोफर 25 मिलीलीटर के साथ खांसी 5 माशा मिलाकर इस्तेमाल करें। सफरावी अगर बुखार हो तो शीरे तुख्म काहू मुकश्शर, शीरे मगज कद्दू शीरी 5-5 ग्राम लें। अर्क शाहतरा और के बेद मुश्क 50-50 मिलीलीटर लेकर उसमें दोनों शीरे भिगाकर शरबत नीलोफर 50 मिलीलीटर का इजाफा कर लें और साथ में खांसी 7 माशा मिलाकर पिलाएं। सफरावी बुखार के लिए दूसरा नुस्खा है लुआब अस्फगोल, मगज तुख्म कद्दू 6-6 ग्राम, 3 अर्क शाहतरा, अर्क कासनी और अर्क मको, ये तीनों 50-50 मिलीलीटर मिलाकर शरबत नीलोफर 25 मिलीलीटर में खांसी 4 ग्राम मिलाकर पिलाएं। बलगमी बुखार के लिए नुस्खा है 25 ग्राम गुलकंद खिलाकर शीरे तुख्म खयारैन, शीरे तुख्म कासनी 4-4 ग्राम हासिल कर लें। अर्क शाहतरा और अर्क मको ये 50-50 मिलीलीटर निकाल कर शरबत बजूरी बारिद 25 मिलीलीटर लेकर उसमें 7 ग्राम खांसी मिला लें। अब तक हम खांसी के वो अफ़ाल ख़वास यूनानी किताबों में जिनका जिक्र था उसे बता रहे थे। जब जदीद तिब ने इस पर तहकीक की तो बहुत सारे नई फाइंडिंग्स भी, नई दरियाफ्तें भी सामने आई। ये दरियाफ्तें आपके सामने पेश की जा रही हैं। खांसी एंटी डायबिटिक इफेक्ट भी लाता है। खांसी के क्लोरोजेनिक एसिड नामी जो फ्लेवोनाइड्स हैं, इनकी वजह से ज़ियाबतस पर कंट्रोल में मदद मिली। शक्कर के इंतजाम में कमी लाते हैं और जिस्म में पहले से महफूज शक्कर जो जिगर वगैरह में जो महफूज रहते हैं उन्हें दौरान खून में शामिल होने में रुकावट बनते हैं। खांसी एंटीऑक्सीडेंट भी साबित है। जिसमें पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाने के लिए खांसी में खास विटामिन सी मौजूद है। इसमें कुछ एंटी कैंसर सलाहियत भी पाई गई। आइसोथायोसाइनेट्स खांसी में मौजूद ग्लूकोबेरिन और बीटा साइटोस्टेरॉल नाम के जो फाइटोकेमिकल्स रहे, ये कैंसर के खुलियात की अफजाइश को रोकते हैं। बल्कि एक तहकीक में मिकद के कैंसर पर, कोलोरेक्टल कैंसर पर खांसी के असर की जांच भी की गई। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मुहल्लिल आराम है। तहकीक से मालूम हुआ कि खांसी में पाए जाने वाले क्वेरसेटिन नामी जो फेनोलिक एसिड्स हैं, ये मुहल्लिल आराम खासियत रखते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट लाते हैं। ये कॉक्स2 एंजाइम्स और दीगर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम करते हैं, जिसकी वजह से सूजन भी कम होती है और जोड़ों के अंदर दर्द भी कम होता है। ये एंटी माइक्रोबियल भी है। पहले जो हैजे हुक्मा ने इसे इस्तेमाल किया, आज इसकी तासीर समझ में आई कि ये वाकई एंटी माइक्रोबियल असर भी रखता है। 2013 के एक तहकीक के मुताबिक खांसी के फाइटोकेमिकल्स आइसोथायोसाइनाइड्स और नाइट्रिल्स ये मुख्तलिफ किस्म के अजसाम में मर्जिया, जरासीम, फंगस और वायरस के खिलाफ बहुत अच्छा असर साबित हुआ। यह हेपेटो प्रोटेक्टिव है, जिगर की हिफाजत करते हैं कई लिहाज से। खांसी में मौजूद फ्लेवोनाइड्स में कैम्फेरॉल, क्वेरसेटिन और एक फाइटोकेमिकल आइसोहर्मनेटिन ये फ्री रेडिकल्स और दीगर दवाई नुकसानदेह असर से जिगर की हिफाजत करते हैं। ये कुछ रिसर्च पेपर आपके सामने है किंग साउद यूनिवर्सिटी का, जो खांसी पर किया गया। ये जर्नल ऑफ ड्रग डिलीवरी एंड थेरापेटिक्स में खांसी का रिसर्च पेपर है। बड़ी तफसील है इस पेपर में, जो चाहे इस रिसर्च आर्टिकल का मुताला कर सकते हैं। ये चार्ट आपको बताता है कि अब तक हमारी किताबों में खांसी के जो असरात, जो अफाल जिक्र हैं, दाफे हुम्मा, मुलत्तिफ, मुनफ्फिस बलगम, नाफे हैजा, जब जदीद तिब ने इस पर तहकीक की तो उन्हें पता चला कि ये असरात वाकई खांसी में पाए जाते हैं। बल्कि इसके अलावा बहुत सारे नए अफाल उनके सामने आए। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इसका आया, मुहल्लिल आराम, जरासीम कुश इफेक्ट आया, एंटीऑक्सीडेंट, नाफिज ज़ियाबतस मिला, माने सरतान मिला, मुक़व्वी व मुहाफ़िज़ जिगर रहा। जो तहकीक अब भी बाकी है वो इसके मुसम्मिन बदन असर की है, जो किस तरह से ये एनाबोलिक इफेक्ट लाती है और बदन को कवी करती है। एक ही सफ़े पर मशहूर अफाल और दीगर अफाल आपके सामने हैं। खांसी के जो मुरक्कबात बाजार में मिलते हैं, सारी कंपनियां शरबत खांसी बनाती हैं। इसका मिजाज गर्म तर दर्जे दुओं में, इसकी मिकदार खुराक 5 से 7 ग्राम है। इसका मुजरत असर ये सर दर्द पैदा करती है। मुसलेह, कतीरा या गुलाब शामिल करें और अगर खांसी ना मिले तो तूदरी का इस्तेमाल किया जा सकता है, खासतौर से मोटापे के लिए। ये थी खांसी या खूब कला के बारे में अफाल खवास और इस्तेमाल की मालूमात। आगे इसकी माहियत, पहचान और दीगर तफसीलात। खांसी को अंग्रेजी में लंदन रॉकेट या हेज मस्टार्ड कहते हैं। लातिनी में इसे सिसिम्ब्रियम आयरियो कहते हैं। उर्दू में इसे खांसी ही कहा जाता है। अरबी में इसे खुब्बा या बजरुल खमखम, फारसी में खूबा या खाकशी, संस्कृत में खार पस्सा, खार माही, पंजाबी में जंगली सरसों
आसो, हिंदी में खूब कला, असालियो, सिंधी में जीखो, जूझन या खाकशीर, मराठी में रान मोहरी, गुजराती में होर होरियो, रान राय, बंगाली में बरबरिया, कश्मीरी में जंगली सरसों कहते हैं। आप खाकसी का पौधा देख रहे हैं, बारीक बारीक सी फलियां लगी हैं जिसमें बहुत सारे दाने भरे हैं। आइए इसकी माहियत जानते हैं। ये एक 20 से 60 सेंटीमीटर लंबे पौधे का निहायत बारीक तुख्म है जो फलियों के अंदर होता है। इसकी फलियां सरसों की फलियों की तरह लेकिन उससे छोटी और बारीक होती। ये आपको खाकसी की फलियां हैं, बारीक लंबी सी जिसमें दाने भरे हुए हैं, टहनी सी नजर आ रहे हैं, लेकिन असल में ये फलियां हैं। और ये है राई की फलियां। राई की फलियां बहुत मोटी होती है और दाने भी कम होते हैं। ये राई की फलियां और ये खाकसी की फलियां। दाने खसखास से छोटे, बस 1 मिलीमीटर के सुर्खी माइल गहरे भूरे रंग के तुख्म होते हैं। ये आपको जो सामने नजर आ रहा है ये खसखास के दाने हैं और ये खाकसी के सुर्खी माइल भूरे। इनका मजा चरपरा होता है और पानी में डालने से लुआब पैदा करता है। ये दाने का असल साइज है। यहाँ पर आपको बताया 0.5 मिलीमीटर का ये स्केल दिया हुआ है, उससे अंदाजा लगाएं मुश्किल से 1 मिलीमीटर के तुख्म होते हैं। और जब इन्हें पानी में भिगोया जाता है तो इस तरह से वो लुआबदार हो जाते हैं। जैसे अस्पगोल लुआबदार हो जाता है, ऐसे ही खाकसी का बीज भी उनके आसपास में भी लुआब पानी की वजह से आ जाता है। 2 किस्म का खाकसी होता है, एक सुर्खी माइल कदरे तल्ख होता है, पौधा 2 मीटर तक और पतली पतली फलियां होती हैं, दाने बहुत बारीक होते हैं। पहली किस्म सुर्खी माइल वाली बताई गई है। दूसरी जो है सुर्खी माइल सियाह जो नीचे है, ये पहली किस्म से ज्यादा कड़वा होता है लेकिन इसका पौधा छोटा 1 मीटर तक होता है। हाँ, फलियां कुछ मोटी होती हैं और दाने भी बड़े होते हैं। सुर्ख जाफरानी रंग वाली बेहतर मानी जाती। मौसम रबी यानी अक्टूबर से मार्च तक गेहूं और चने के खेतों में ये खुद ब खुद उग जाते हैं। हर साल नए पौधे उग जाते हैं। कभी जरूरत होती है तो इससे बाकायदा काश्त भी की जाती है। आपको खाकसी का पौधा नजर आ रहा है। पौधा कमोबेश 3 फीट से 1 मीटर तक लंबा होता है। कुछ पौधों पर हल्के रोए भी पाए जाते हैं। तना शाखदार होता है, चमकदार होता है। इसके पत्ते लंबे लंबे नोकदार तिकोने बेतरतीबी से कटे फटे तने से बिल्कुल लगे हुए होते हैं। अगर आप गौर करें कि ये तना है तो बिल्कुल उससे लगा हुआ ये पत्ता निकला हुआ है। जड़ के चारों तरफ पत्ते फैले हुए रहते हैं, बिल्कुल एक राउंड की तरह खूबसूरत सा पत्तों का खोशा जैसा नजर आता है। जड़ के चारों तरफ पत्ते बराह रास्त तने से निकलते हैं। यहाँ बीच में तना डेवलप होगा और उसी से पत्ते निकले हुए हैं सब तरफ। बिना डंडी के ये पत्ते पूरी लंबाई में कटे फटे ही होते हैं। यहाँ भी आप पूरा रोजेट देख रहे हैं, चारों तरफ पत्तियां निकली हुई और यह एक पत्ती पूरी लंबाई में कटी फटी है। ये सामने का हिस्सा है, ये पिछला हिस्सा है। पिछला हिस्सा कुछ गहरा होता है। इसके फूल बहुत छोटे छोटे 3-3 मिलीमीटर के गुलदस्ते की शक्ल में गुच्छों में लगते हैं। यहाँ एक फूलों का गुलदस्ता नजर आ रहा है आपको। हाथ की साइज से समझ सकते हैं आपके ये खोशा कई फूल जहाँ पर हैं कितना छोटा होता होगा। गुलदस्ते के दरमियान में पहले हरी हरी कलियां बनती हैं। यहाँ आपको कलियां नजर आ रही हैं, यहाँ कलियां हैं। ये पहले कलियां रहती हैं और उसके बाद ये फूल बन जाते हैं। बारहवरे के बाद वहीं गुच्छों में गैर बारहवर फूलों के बाजू से फलियां लगना शुरू होती हैं। ये खाकसी का एक फूल है, ये खाकसी का फूल है। पंखड़ियां 4 पंखड़ियां नजर आ रही हैं और जो बारहवर फूल है वो वहीं बगल में फल्ली में बदल गए हैं। यहाँ भी फल्ली में बदल चुके हैं। आप देख सकते हैं कैसे किस तरह फूलों के दरमियान में से ये निकला जा रहा है। यहाँ भी 4 पंखड़ियों वाले फूल और उन्हीं के बाजू से जो बारहवर फूल है उनकी फलियां नजर आ रही हैं और ये हैं फलियां। फलियां ही खाकसी के फल होते हैं जो पहले हरे और पक जाने पर गहरे चॉकलेटी या भूरे होते हैं। यहाँ पर आपको सब्ज फलियां नजर आ रही हैं और ये अब गहरा होना शुरू हो गई हैं। एक तनहा फली आपके सामने है, हर हिस्से में एक एक दाना होगा खाकसी का और ये गहरे चॉकलेटी या भूरे रंग के फलियां। ये बिल्कुल खुश्क हो जाने के बाद फलियों का नजारा है आपके सामने। फलियां जून और सितंबर के दरमियान लगती हैं। बारीक बारीक लंबी इन फलियों में राई की फलियों की तरह लेकिन बहुत छोटे तकरीबन 1 मिलीमीटर लंबाई के 60 से 80 तुख्म पाए जाते हैं। नबाताती खाका आपके सामने है। जड़ देख रहे हैं, कटी फटी पत्तियां, एक फली और तुख्म उसके। इस्तेमाल होने वाले अज्जा खाकसी के दाने ही इस्तेमाल होते हैं और सुर्खी माइल जो दाने होते हैं वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। पैदावारी इलाके और काश्त इंडो पाक में इंडिया से ज्यादा खाकसी पाकिस्तान में उगती है और दुनिया के जिन इलाकों में खाकसी पैदा होती है वो आपके सामने है। शुमाली अफ्रीका के ममालिक अल्जीरिया, मिस्र, सूडान, लीबिया, मराकश, सऊदी अरबिया, ओमान, यमन, कुवैत और अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की में भी, चीन और यूरोपीय कुछ ममालिक में भी कुदरती तौर से उग जाता है। ये थी खाकसी के ताल्लुक से मालूमात। अगर वीडियो अपलोड करने के बाद कोई अहम तब्दीली या इस्लाह की गई तो आपको पिन कमेंट में बता दी जाएगी।